This lecture we will discuss the remaining type of mixture. In the previous lecture we will learn the classification of a mixture. We have to study the chapter 5th in the pharmaceutic second, that is monophysic liquid dosage form. What is the definition of monophysic liquid dosage form? After that some of the advantage and disadvantage. After that the next is most is important, that is classification of monophysic liquid dosage form. We have to all this topic we have to learn in the previous lecture. Okay, after that the next is in the classification of monophysic liquid dosage form. There is two type of monophysic liquid dosage form. First is internal and second is external. In that internal, that is subtype of, we can say that sub example, that is mixture, syrup, elixir, linctuses are the example of monophysic liquid dosage form that is used for internal administration, or we can say that used for internal purpose. Then the next is monophysic liquid dosage form, that is external use, used for external administration. In that sub point, that is application on the skin. Second is used in the mouth, and the third is instilled into body cavities. First is example of this application on the skin, that is liniment and lotion. Then the second is used in the mouth, that is gargles, mouth, throat. Then the next is instilled into body cavities. Example is douches, ear drop, nasal spray. After that then the next is we have to learn the mixture. What is the definition of mixture? Mixture is a liquid preparation meant for oral administration in which medicament or medicaments are dissolved or suspended in a suitable vehicle, is called as mixture. After that there is five type, or we can say that classification of a mixture. First is simple mixture containing soluble substances. Second is mixture containing diffusible solids. Third is mixture containing indiffusible solids. Fourth is mixture containing precipitate forming liquids, and fifth is last but not least, that is mixture containing slightly soluble liquid. In the previous lecture we will discuss the simple mixture containing soluble substance, second is mixture containing diffusible solids, and third is mixture containing indiffusible solids. After that in the today's lecture we will learn we have to discuss the remaining two type of mixture, that is mixture containing precipitate forming liquid, and second is fifth is mixture containing slightly soluble liquid. Just I have to revise the previous lecture in short, in very shortly. That is simple mixture, it contains only soluble ingredients. It is represented by true solution. It is a clear homogeneous mixture. Example is carbonated mixture and expectorant mixture. After that the next is method of dispensing. Firstly, where the solid dissolved a solid in a 3/4 of vehicle is given here. 3/4 vehicle we have to use इन दिस सिंपल मिक्सचर. इसमें क्या क्या करना है आपको, 3/4 वॉल्यूम लेना है व्हीकल का, उसके अंदर सॉलिड इंग्रेडिएंट ऐड करना है, एग्जामाइन करना है सॉल्यूशन बाय होल्डिंग अगेंस्ट लाइट के सामने उस सॉल्यूशन को रखकर एग्जामाइन करना है. इफ़ देर इज सर्टन फॉरेन पार्टिकल इज ऑब्जर्व, देन वी हैव टू डू दैट, देन यू हैव टू फिल्टर इट and remove this foreign particle from this solution. After that then the next is add the other ingredient, add more vehicle to produce final volume, then the fill bottle and label, cork it and clean bottle, attach label, wrap bottle and dispense. This is the method of simple mixture. Okay, after that example, then the mixture containing diffusible mixture, or we can say that mixture containing diffusible solids. इन दिस डिफ्यूजिबल सॉलिड्स आर, जो डिफ्यूजिबल सॉलिड होता है उसके अंदर जो सॉलिड हम ऐड करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, और व्हीकल के अंदर हम जो सॉलिड ऐड करते हैं वो इनसोल्यूबल होता है उसके अंदर. यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड इन द व्हीकल ऑन शेकिंग. इसमें जो एक हम बनाते हैं मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड, तो उसके अंदर हमने एक व्हीकल लिया है, वाटर लिया है, उसके अंदर हमने सॉलिड ऐड किया है, लेकिन वो सॉलिड उस व्हीकल के अंदर इनडिफ्यूजिबल है. मतलब क्या बोलेंगे, डिफ्यूजिबल है बोलेंगे. तो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड होता है. कब होता है, जब हम उसे शेक करेंगे तो वो पूरा जो पार्टिकल है, सॉलिड जो इंग्रेडिएंट है, पूरा व्हीकल के अंदर मिक्स हो जाएगा, और इसके अंदर सस्पेंडिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है. तो एग्जांपल बताया गया है यहाँ पर बिस्मथ कार्बोनेट, सेकंड है बिस्मथ सब नाइट्रेट, एंड थर्ड इज मैग्नीशियम कार्बोनेट.
आफ्टर दैट मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग इज पाउडर ड्रग लेना है मोटर के अंदर, सोल्यूबल ड्रग उसके अंदर डालना है, मिक्स करना है, मेजर 3/4 व्हीकल करना है, 3/4 क्वांटिटी में लेना है व्हीकल। उसके बाद 3/4 व्हीकल क्या होता है वो सब हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था, आपने स्टडी करना है धीरे धीरे। जस्ट आई हैव टू रिवाइज प्रीवियस लेक्चर। मेक स्मूथ क्रीम बाय पोर्शन ऑफ व्हीकल, स्मूथ क्रीम बनानी है उसके अंदर, मोटर के अंदर जो व्हीकल डालकर सॉलिड इंग्रेडिएंट उसमें ऐड करना है, उसका स्मूथ क्रीम बना लेनी है आपको। ट्रांसफर कंटेंट फ्रॉम वाटर में से वो कंटेंट निकाल लेना है आपको, मेजरिंग apparatus में डाल देना है। उसके बाद ऐड ए लिक्विड इंग्रेडिएंट, जो भी अनदर लिक्विड इंग्रेडिएंट इज गिवन हीयर, तो उसके अंदर ऐड करना है आपने उसके अंदर। ऐड मोर व्हीकल टू प्रोड्यूस फाइनल वॉल्यूम। उसके बाद आपने क्या करना है, जो दूसरा हमारा जो 3/4 व्हीकल हमने लिया था उसमें से जो रिमेनिंग हमारा व्हीकल है वाटर एज बोलेंगे, तो वो उसके अंदर हमने फाइनल वॉल्यूम में कब कर लेना है उसका। फिल इन द बॉटल एंड लेबल, कॉर्क इट, अटैच लेबल एंड स्पेशल इंडिकेशन और स्पेशल डायरेक्शन इज गिवन हियर, दैट इज शेक वेल बिफोर यूज, रैप बॉटल एंड डिस्पेंस। दिस इज ऑल्सो इन शॉर्ट मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग। Example, direction, mixture containing indiffusible solid. Indiffusible solid are insoluble in vehicle. जो indiffusible solid होते हैं vehicle के अंदर मिक्स नहीं होते, insoluble होते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर एक स्पेशल बताया गया है, एक स्पेशल पॉइंट है इसके अंदर, नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द व्हीकल ऑन शेकिंग। जैसा कि हमने डिफ्यूजिबल सॉलिड में देखा था, जो हमारे सॉलिड इंग्रेडिएंट होते हैं व्हीकल के अंदर मिक्स नहीं होते, इंसोल्यूबल है वो भी, और जो इंडिफ्यूजिबल सॉलिड है वो भी इंसोल्यूबल है व्हीकल के अंदर। लेकिन डिफ्यूजिबल सॉलिड में क्या होता है कि जब भी हम उसे शेक करेंगे उस मिक्सचर को और उस सॉल्यूशन को, तो वो जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड पार्टिकल पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं व्हीकल के अंदर। वो किस में होता है, ये डिफ्यूजिबल में होता है। लेकिन इंडिफ्यूजिबल में क्या होता है, जैसे हम शेक करते हैं, जैसे शेकिंग करेंगे पार्टिकल इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, तो उसके लिए क्या करना है हमको, एक इसके अंदर सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करना है सॉल्यूशन के अंदर, ताकि जब हम उसे शेक करेंगे, जब हम उसे इंटेक करेंगे तो पार्टिकल इवनली और क्या बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरा अच्छी तरह से उस सॉल्यूशन के अंदर। एग्जांपल है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, क्विनिन सैलिसिलेट, कैलोमेल, देन फिनिसिटिन, देन चाल्क पाउडर। सस्पेंडिंग of drug is required, so suspending agent added in formulation. After that there are two suspending agent, that is compound tragacan powder and tragacan mucilage. After that there is dispensing method. Example, direction, difference between them, that is diffusible mixture and indiffusible mixture. After that the next point of in this today's lecture we have to discuss the main point, that is mixture containing fourth sub classification of mixture, that is mixture containing precipitate forming liquid. अब प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड क्या होता है वो हमने स्टडी करना है आज इस लेक्चर में। तो प्रिसिपिटेशन और प्रिसिपिटेट मतलब आप सभी को पता है, पीपीटी क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है उसका लिक्विड, तो वो देख लेते हैं। सर्टन लिक्विड प्रिपरेशन, एक जैसे मैं बता देती हूँ पहले लेक्चर के पहले, प्रिसिपिटेशन फॉर्म होना मतलब क्या होता है कि जो भी हम लिक्विड लेते हैं उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट जो सॉलिड सब्सटेंस उसके अंदर एक्टिव मेडिकामेंट जो है हमने ऐड किया, तो क्या हो जाएगा पूरा उसके अंदर मिक्स नहीं होता। एक प्रिसिपिट मतलब सॉलिड जो पार्टिकल होते हैं वो साइड में और इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, पूरा साइड में वो पार्टिकल्स जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो ऊपर से दिखाई देते हैं, सॉलिड इंग्रेडिएंट, उसको क्या बोलेंगे पीपीटी फॉर्म होना ऐसे बोलेंगे। सर्टन लिक्विड प्रिपरेशन कंटेन रेजिनस मैटर, सर्टन लिक्विड प्रिपरेशन, अब कुछ लिक्विड प्रिपरेशन जो होता है उसके अंदर रेजिनस मैटर हमने ऐड करना होता है। तो व्हेन मिक्स, जब हम उस रेजिनस मैटर उस लिक्विड कुछ लिक्विड जैसा व्हीकल है उसके अंदर हमने ऐड करना है रेजिनस मैटर, तो तब क्या होता है व्हेन मिक्सड विथ वाटर में हम मिक्स करेंगे रेजिनस मैटर, द रेजिन इज प्रिसिपिटेटेड, जो रेजिन होता है वो पीपीटी फॉर्म करता है, प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है। विच में प्रिसिपिटेट फॉर्म मतलब होता है, मतलब क्या होता है, जैसा हम वाटर में ऐड करेंगे तो उसके सॉलिड पार्टिकल ऐसा छोटे स्मॉल सॉलिड पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे, पूरा उसके अंदर मिक्स नहीं होगा, तो उसे पीपीटी फॉर्म होना ऐसे बोलेंगे। विच में एडियर टू साइड्स, कुछ क्या होता है कि वो जो बीकर है, जो apparatus है उस साइड में अटैच हो जाता है और एडियर हो जाता है। विच में एडियर टू साइड्स ऑफ बॉटल, जो बॉटल हमने ली है उसके साइड में अटैच हो जाते हैं और एडियर चिटक जाते हैं वो पार्टिकल, और फॉर्म ऑफ क्लॉटेड प्रिसिपिटेट, और कुछ क्या होता है कि ऐसे क्लॉटिंग फॉर्म होती है,
सॉलिड सॉलिड पार्टिकल असे क्या बोलेंगे क्लॉटेड होते, मतलब गोळा होऊन बसणार आहेत ते पार्टिकल आणि त्या बॉटलच्या साईडला पण चिटकून राहणार आहेत. त्यालाच काय म्हणणार आहेत आपण? प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन. आफ्टर दैट दिस विल नॉट रीडिफ्यूज़ अपॉन शेकिंग. अब यहाँ पर जो प्रिसिपिटेशन जो होता है, पीपीटी जो फॉर्म होती है, मिक्सचर कंटेनिंग पीपीटी फॉर्मिंग लिक्विड्स, इसमें क्या होता है कि दिस विल नॉट रीडिफ्यूज़ अपॉन शेकिंग. जैसा हम इसको शेक करेंगे वो रीडिफ्यूज़ नहीं होगा, मतलब पूरे जो पार्टिकल हैं पूरे मिक्स नहीं हो जाएंगे. ओके, जैसा हमने इंडिफ्यूजिबल मिक्सचर में देखा था, उसमें जब शेक करते हैं तो पार्टिकल क्या होते हैं, रीडिफ्यूज़ और पार्टिकल इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते व्हीकल के अंदर. तो हमने सस्पेंडिंग एजेंट ऐड किया था इंडिफ्यूजिबल सॉलिड के अंदर. तो सस्पेंडिंग एजेंट जैसा भी हमने ऐड किया तो जैसा भी हम शेक करेंगे तो पार्टिकल पूरा मिक्स होते हैं. लेकिन इसमें क्या होता है, मिक्सचर कंटेनिंग पीपीटी फॉर्मिंग लिक्विड में जैसा हम शेक करेंगे पार्टिकल इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते. डिस्ट्रीब्यूट मतलब पूरा अच्छे से मिक्स नहीं होते. वो जो क्लॉट हुए जो सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं पूरा अच्छे से मिक्स नहीं होते उस व्हीकल के अंदर. यही इसे बोलते हैं हम मिक्सचर कंटेनिंग प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड्स. टू प्रिवेंट दिस, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या करना है, सस्पेंडिंग एजेंट, जैसे कि मैंने इंडिफ्यूजिबल सॉलिड में आपको बताया था कि सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करना है. इसमें भी वही प्रोसेस हमने सेम करना है. टू प्रिवेंट दिस वी हैव टू यूज सस्पेंडिंग एजेंट. दैट इज व्हाट इज, दो टाइप के हमने सस्पेंडिंग एजेंट इंडिफ्यूजिबल सॉलिड में ऐड किए थे. क्या थे? फर्स्ट एक कंपाउंड ट्रोगाकैन और दूसरा था ट्रोगाकैन म्यूसिलेज. ये सस्पेंडिंग एजेंट हमने उसके अंदर ऐड करना है. एग्जाम्पल रेजिन एक्सट्रैक्ट, टिंचर्स एक्सेट्रा. आफ्टर दैट द मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग ऑफ दिस मिक्सचर कंटेनिंग प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड्स. इसमें हमने क्या करना है, सॉलिड लेना है प्लस ट्रोगाकैन पाउडर लेना है 2%, ट्रैचुरेट. इसमें आपने क्या करना है, जैसे कि हमने इंडिफ्यूजिबल में देखा था उसी तरह से ये भी है मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग. मिक्सचर कंटेनिंग पीपीटी फॉर्मिंग लिक्विड्स, सॉलिड लेना है, ट्रोगाकैन पाउडर लेना है 2%, ट्रैचुरेट करना है दोनों को विद पोर्शन फॉर्म. उसके अंदर हमने 3/4 ऑफ व्हीकल उसमें ऐड करना है और उसका स्मूथ क्रीम प्रिपेयर करनी है और उसके अंदर ऐड अ प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड इन द सेंटर ऑफ क्रीम. अब उसमें क्या करना है, जो भी प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग जो लिक्विड हमने व्हीकल लिया था वो उसमें ऐड कर देना है. तो इसमें क्या करना है हमने, जैसे कि हमने एक सॉलिड लिया था, ट्रोगाकैन लिया था और व्हीकल जो था वाटर हमारा, उसका क्रीम बनाए थे. और जो प्रिसिपिटेशन जो हुआ था रेजिनस मैटर का वाटर के अंदर, वो प्रिपरेशन हमने इसके अंदर ऐड करना है. सेंटर में जो क्रीम हमने बनाया था स्मूथ क्रीम ट्रोगाकैन पाउडर का और सॉलिड का, उसके अंदर क्या व्हीकल डाल के जो बनाया था उसके अंदर जो प्रिसिपिटेशन फॉर्मिंग का जो लिक्विड होता है वो ऐड करना है. एड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ व्हीकल, जो 3/4 वॉल्यूम जो 3/4 व्हीकल जो लिया था उसमें से जो रिमेनिंग है वो भी ऐड करना है. एग्जामिनेशन करना है, अगर फॉरेन पार्टिकल है तो एग्जामिनेशन करना है. ऐड अनदर लिक्विड, अगर कोई अदर इंग्रेडिएंट है वो भी ऐड करना है. सोल्यूबल इंग्रेडिएंट जो अदर है वो भी ऐड करना है इसके अंदर. और जो रिमेनिंग व्हीकल है वो उसके अंदर ऐड करके वॉल्यूम मेकअप करना है आपको. आफ्टर दैट ये था कंपाउंड ट्रोगाकैन पाउडर की व्यवस्था था. अब जो नेक्स्ट देखते हैं वो म्यूसिलेज. जो ट्रोगाकैन म्यूसिलेज है सस्पेंडिंग एजेंट, उसके लिए है ये. सॉलिड लेना है हमने, प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड लेना है और उसके अंदर ट्रोगाकैन म्यूसिलेज जो प्रिपेयर किया है हमने ट्रोगाकैन का वो लेना है 1/4 में और उसको ट्रैचुरेट करना है, स्मूथ क्रीम फॉर्म करना है, उसके अंदर व्हीकल डालना है हमने. उसके बाद एग्जामाइन करना है. तो उसके बाद कुछ फॉरेन पार्टिकल हमने नहीं देखे तो उसके बाद क्या करना है, और जो अनदर लिक्विड इंग्रेडिएंट और सोल्यूबल इंग्रेडिएंट जो प्रेजेंट है, जो डालने हैं हमको अदर इंग्रेडिएंट, उसके अंदर ऐड करना है, वॉल्यूम मेकअप करना है सिंपली. ओके, ये थी क्या था, मिक्सचर कंटेनिंग प्रिसिपिटेट पीपीटी फॉर्मिंग लिक्विड, उसके डिस्पेंसिंग मेथड. एक कंपाउंड ट्रोगाकैन की थी और दूसरी ट्रोगाकैन म्यूसिलेज की. 2 सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करके हमने फॉर्मुलेशन प्रिपेयर किया है मिक्सचर कंटेनिंग पीपीटी फॉर्मिंग लिक्विड. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज एग्जांपल RX मीन्स यू टेक. देन आफ्टर दैट पोटेशियम आयोडाइड 2 ml, टिंचर लोबेलिया ईथर 4 ml, टिंचर स्टैमोनियम 16 ml and chloroform water add up to 90 ml. Direction is 1 dessert spoonful to be taken 4 times a day. आफ्टर दैट मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग, जैसे हमने पहले स्टडी किया था वही मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग यहाँ भी लिखना है. देन नेक्स्ट इज
तो नेक्स्ट जो हमारा सब क्लासिफिकेशन है, फिफ्थ लास्ट है मिक्सचर कंटेनिंग स्लाइटली सोल्यूबल लिक्विड। तो इसमें बताया गया है कि एज द नेम इंडिकेट, इसके अंदर जो मिक्सचर है हमारा स्लाइटली सोल्यूबल है, लिक्विड के अंदर जो सॉलिड इंग्रेडिएंट है वो स्लाइटली सोल्यूबल है। तो देखते हैं क्या है, द इनसोल्यूबल पोर्शन जो स्लाइटली है, पूरा सोल्यूबल है कि नहीं, स्लाइटली थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत सोल्यूबल है और थोड़ा बहुत इनसोल्यूबल है। तो द इनसोल्यूबल पोर्शन ऑफ स्लाइटली सोल्यूबल लिक्विड, जो सोल्यूशन है उसका थोड़ा सा इनसोल्यूबल पोर्शन जो होता है वो इनसोल्यूबल है इसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर, इज़ नॉट रेडिली डिफ्यूजिबल, मतलब स्लाइटली सोल्यूबल है, पूरा सोल्यूबल नहीं है सॉलिड इंग्रेडिएंट व्हीकल के अंदर, और पूरा डिफ्यूज़ नहीं होने वाला है वो, मतलब उसको शेकिंग करना पड़ेगा, शेकिंग करने के बाद वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफ्यूजिबल हो जाएगा सॉलिड इंग्रेडिएंट लिक्विड के अंदर। जो व्हीकल हमने यूज़ करना है उसके अंदर जो सॉलिड इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो स्लाइटली सोल्यूबल है, पूरा सोल्यूबल नहीं है। सो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, सस्पेंडिंग एजेंट आल्सो हियर इज एडेड इन दिस, दैट इज ट्रोगाकैंथ पाउडर और ट्रोगाकैंथ म्यूसिलेज आर एडेड। तो स्लाइटली सोल्यूबल है हमारा सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड व्हीकल के अंदर, तो इसलिए हमको क्या करना है, सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करना है, सच एज ट्रोगाकैंथ पाउडर एंड ट्रोगाकैंथ म्यूसिलेज आर नीडेड टू डिस्पेंस सच अ मिक्सचर। तो एग्जाम्पल पैराल्डिहाइड लिक्विड, ये लिक्विड है, मतलब क्या होता है कि हमने कुछ प्रिपरेशन बनानी होती है, उसके अंदर कुछ जो सॉलिड रहते हैं, कुछ सोल्यूबल होते हैं, कुछ इनसोल्यूबल होते हैं और कुछ स्लाइटली इनसोल्यूबल होते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, तो ये व्हीकल के अंदर ये सॉलिड इनसोल्यूबल है, तो हमने इसके अंदर मिक्स करने के वास्ते क्या करना है, कुछ सस्पेंडिंग एजेंट जो होता है, जैसे कि वो पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसके अंदर ऐड करना होता है। यही बताया गया है कि कुछ जो सब्सटेंस होते हैं जैसे कि इनसोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, इनसोल्यूबल है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पर ऐसे बताया गया है कि जनरल समझ में आने के लिए कंसेप्ट। तो हमने आज के लेक्चर में ये स्टडी किया था। दो नेक्स्ट पॉइंट हमने आज के लेक्चर में स्टडी किए, एक था मिक्सचर कंटेनिंग पीपीटी फॉर्मिंग लिक्विड्स और मिक्सचर कंटेनिंग स्लाइटली सोल्यूबल लिक्विड। आफ्टर दैट some of the example is also given here, RX, after that paraldehyde 4 ml, syrup 8 ml, liquid extract of glycyrrhizin that is 2 ml, water add up to 30 ml। जैसे कि यहाँ पर बताया गया, फॉर एग्जांपल हमने एक मोटर में पैराल्डिहाइड और एक बीकर लिया है, हमने उसके अंदर पैराल्डिहाइड डाल दिया है, एक सिरप है, सिरप उसमें ऐड करना है हमने, बाद में उसके अंदर लिक्विड एक्सट्रैक्ट हमने उसके अंदर ऐड करना है, और थोड़ा सा वाटर जो हमने व्हीकल लेना था 50 ml हमने लिया, उसके अंदर पैराल्डिहाइड डाल दिया, सिरप डाल दिया और लिक्विड एक्सट्रैक्ट डाल दिया। उसको मिक्स करने के बाद जो रिमेनिंग हमारा व्हीकल है वाटर, उसके अंदर ऐड करके वॉल्यूम मेकअप करना है हमको। सिंपल है, ईजी है। डायरेक्शन टेक एज अ डायरेक्टेड, जैसा फिजिशियन और डॉक्टर लोग बताते हैं तो उसके हिसाब से हमने ये मिक्सचर कंटेनिंग स्लाइटली सोल्यूबल लिक्विड हमने लेना है, इनटेक करना है। ओके, मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग देख लेते हैं। पैराल्डिहाइड लेना है हमने, ट्रोगाकैंथ म्यूसिलेज लेना है इन बोतल, उसको शेक करना है विगरसली, क्योंकि लिक्विड है, यहाँ पर मोटर पेसल की ज़रूरत नहीं है। एक बीकर यानी कि मान लीजिए एक बोतल हमने ले ली, उसके अंदर पैराल्डिहाइड और ट्रोगाकैंथ म्यूसिलेज ऐड किया, शेक करना है, डिजोल्व सिरप उसके अंदर डिजोल्व करना है, देन उसके बाद लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ ग्लिसराइजा उसके अंदर वाटर के अंदर डाल के उसके अंदर डालना है उस बोतल के अंदर। उसके बाद बोतल कंटेंट है उसको विगरसली शेक करना है, और जो रिमेनिंग व्हीकल है हमारा वाटर उसके अंदर ऐड करना है। सिंपल मेथड है। ओके, आफ्टर दैट फॉर्मुलेशन वो है आगे का, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। जस्ट आई हैव टू रिवाइज दिस टुडेज लेक्चर, फोकस ऑन दिस व्हाट आई हैव टू सेड। प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड, कुछ ऐसे सर्टन लिक्विड होते हैं उसके अंदर जो रेजिनस मैटर जो रहता है, रेजिन रहता है, तो उसके अंदर मिक्स नहीं होता। तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना है, वो दो रेजिन और वाटर को मिक्स करना है। प्रिसिपिटेट जो फॉर्म होते हैं उसके अंदर से पूरा हमको वो रेजिन उसके अंदर मिक्स करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सस्पेंडिंग एजेंट डालकर उस प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड के अंदर सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करना है, मिक्स करना है और उसको बोतल में भर देना है। ओके, ये था मिक्सचर कंटेनिंग प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड्स। अब नेक्स्ट उसके मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग देख लिए हमने इधर। उसके बाद जैसे कि दो सस्पेंडिंग एजेंट हैं, जैसे कि एक था ट्रोगाकैंथ, कंपाउंड ट्रोगाकैंथ और ट्रोगाकैंथ कंटेनिंग म्यूसिलेज और म्यूसिलेज ट्रोगाकैंथ, ये दो सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करके हमने
प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड और मिक्सचर बनाना है। उसके बाद एग्जाम्पल था, उसके बाद डायरेक्शन है और मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग वही जो हमने स्टडी किया था वही लिखना है यहाँ पर। उसके बाद मिक्सचर कंटेनिंग स्लाइटली सोल्यूबल लिक्विड, यानी कि जो ऐसे सॉलिड है, ऐसा सॉलिड जो कि स्लाइटली थोड़ा सा व्हीकल के अंदर सोल्यूबल है, पूरा नहीं है, तो पूरा सोल्यूबल होने के लिए हमने इसके अंदर सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करना है और उसको अच्छे से मिक्स करना है। एग्जाम्पल है पैराल्डिहाइड लिक्विड, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज that is पैराल्डिहाइड सिरप, लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ ग्लिसराइजा वाटर, डायरेक्शन टेक एज ए डायरेक्टेड, जैसा कि फिजिशियन हमें बताते हैं उसी तरह से हमें लेना है। ओके, थैंक यू।